Hello everyone. Today we will discuss one of the most important term of our Bharatiya Nyaya Samhita, that is common intention and common object. Okay. पहला क्या है कॉमन इंटेंशन एंड दूसरा है कॉमन ऑब्जेक्ट. ओके. कॉमन ऑब्जेक्ट. So, like IPC, this time section 3 of BNS, section 3, section 3, Section 3, subsection 5 of BNS has given the provision regarding common intention. Okay, common intention के बारे में दिया गया है. ठीक है, तो अभी देखेंगे प्रोविजन में क्या दिया गया है. सो नाउ लेट्स रीड द प्रोविजन. देखिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में दिया गया है व्हेन द क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, ओके, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. That means क्या बोला है, when any criminal act is done by several person, अगर कोई भी criminal act several person के द्वारा किया जाता है in furtherance of what, in furtherance of common intention of all, सभी का common intention एक है. ईच ऑफ सच पर्सन, उस ग्रुप का जितना भी पर्सन होगा, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल, सभी के सभी इक्वली लाइबल होगा फॉर दैट एक्ट, ओके, फॉर दैट कॉमन एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम एलोन. उसको पनिशमेंट ऐसे दिया जाएगा और कंसिडर ऐसे किया जाएगा कि वो कार्य सिर्फ उसी ने अकेले किया है. ठीक है. नाउ देखते हैं जैसे कॉमन इंटेंशन में और क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं. देखिए कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, सेवरल पर्सन इज इम्पोर्टेंट. ओके, कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, देखिए कॉमन इंटेंशन में रिलेट करते हैं. कॉमन इंटेंशन में देखिए क्या होता है. नंबर 1 हम लोग का है सेवरल पर्सन होगा. ठीक है, एक से ज़्यादा पर्सन चाहिए. ठीक है, कॉमन इंटेंशन के लिए. ठीक है, सेवरल पर्सन चाहिए. देन most important thing is that it does not create any specific offense. ये कोई specific offense create नहीं करता है. does not create any specific offense. okay, नंबर 3 क्या होगा ब्रदर. नंबर 3 होगा in case of common intention, prior meeting of mind is necessary. Okay, that means prior meeting of mind is necessary. Okay, prior meeting of mind is necessary, or we can say that pre-arranged plan. Okay, or we can say that pre-arranged plan is necessary. Okay, so what we can say that in case of common intentions, several person is are involved. नंबर 2 है it does not create any specific offense. okay, ये सभी मिलके जो एक ऑफेंस कर रहे हैं और हर कोई एक का स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं होगा. ओके, नंबर 3 देखिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टेंट इज नेसेसरी. प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टेंट, और वी कैन से प्री अरेंज प्लान. okay, pre-arranged plan is important for the purpose of common intention. okay, और एक है देखिए, और एक है नंबर 4 दे सकते हैं हम लोग क्या, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी. नंबर 4 दे सकते हैं हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन. ओके, पार्टिसिपेशन. So, what are the key ingredient for common intention? Then we can say that several person is necessary. Then it does not create any specific offense. Number 3 होगा prior meeting of mind is necessary, and number 4 होगा हम लोग का active participation of the several persons. Okay, so this is
दिस इज आवर कॉमन इंटेंशन। सो फिर से देखते हैं सेक्शन 3 subsection 5 of BNS has defined the provision or has given the provision regarding common intention. Okay, common intention mean हर बहुत सारा लोग मिलके एक उन लोगों का एक कॉमन इंटेंशन है एंड इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल each of such person, okay, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। ठीक है, ऐसे ऐसे उसको माना जाएगा कि वही कार्य सिर्फ उसी ने एक ही किया है। दैट मीन्स सभी का ईच एंड एवरीवन विल बी इक्वली लाइबल फॉर दैट एक्ट। दैट मीन्स it is also about vicarious liability, vicarious liability, vicarious liability, that means करे कोई भरे कोई। Okay, vicarious liability, about vicarious liability we have also learned in our tort, in our tort we have also learned about vicarious liability। So section say subsection 5 is also about vicarious liability। Okay, vicarious liability, liability, दैट मीन्स अगर कोई भी कोई भी एक क्राइम और कोई भी एक्ट अगर कुछ लोग मिलके कर रहा है, ठीक है, फॉर एनी कॉमन इंटेंशन, देन ईच ऑफ सच पर्सन, इस ग्रुप में जितना भी पर्सन रहेगा सभी के सभी इक्वली लाइबल होगा फॉर दैट एक्ट एज इफ कैसे माना जाएगा कि सब वो अकेला पर्सन ही लाइबल है, मैंने वो ही इज इट वर डन बाय हिम एलोन, कि उसने अकेले ही किया है। इवन दो दिस ग्रुप इज अ मेंबर ऑफ 5 और दिस ग्रुप इज अ मेंबर ऑफ 10 पीपल, ओके, लेकिन उसको कंसिडर किया जाएगा कैसे कि इट वर डन बाय हिम एलोन। ओके, हिम एलोन। ओके, so this is all about common intention। now next moving to next topic, that is our common object। okay, common object देखिए, section 90, section 190 of BNS has given the provision regarding what? Common object। okay, common object, common object, common object। so now let's read the provision। every member of unlawful assembly guilty of offense, okay, committed in prosecution of common object। so every member of unlawful assembly, so before going to this section we have to know the provision of unlawful assembly, that is which is given under section number 189 of BNS। so so 189 of BNS has given the provision regarding unlawful assembly। so now let's read the provision of common object। कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या लिखा गया है? इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ओके, तो अनलॉफुल असेंबली में क्या होता है? एटलीस्ट 5 मेंबर, 5 मेंबर और मोर, ठीक है, का क्या बोला है? इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ओके, एनी मेंबर 5 में से कोई भी एक पर्सन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, अगर कोई कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए ऑफ दैट असेंबली, वो उस असेंबली और उस ग्रुप का, और such or such as the members of that assembly knew it to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing at that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। मीन्स क्या बोला है? देखिए, कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है? देखिए, कॉमन ऑब्जेक्ट में हम लोग का ये पहले अगर हम लोग देखेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट में इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 पीपल, ठीक है, एटलीस्ट 5 पीपल चाहिए हम लोग का फॉर एनी कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट आफ्टर दैट इट क्रिएट्स द स्पेसिफिक ऑफेंस। ओके, ये स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो क्रिएट्स विकरियस लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। तो इधर क्या बोला है? देखिए, इधर बोला है कि कोई भी मैंने कोई भी अगर कोई भी एक मेंबर, ठीक है, कोई भी एक पाँच पाँच लोगों का एक ग्रुप है, अगर इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी एनी मेंबर, अगर कोई एक भी पर्सन में किया गया है,
तो एक अगर एक पर्सन ने किया किया है देन सभी पर्सन इक्वली लाइबल होगा, ठीक है। इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, अगर कॉमन ऑब्जेक्ट टोटल 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, 5 टोटल कॉमन ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, अगर ग्रुप में से कोई भी एक पर्सन आके फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी कॉमन ऑब्जेक्ट कोई भी एक कार्य करता है, ठीक है, ग्रुप में से कोई भी आके और 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 ये कॉमन ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली अचीव भी होता है, देन ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दैट ग्रुप विल बी इक्वली लाइबल, ठीक है। देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इन डिटेल में समझते हैं। देखिए इन केस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, देखिए कॉमन ऑब्जेक्ट में हम लोग का एटलीस्ट 5 पीपल आर पर्सन आर रिक्वायर्ड, ओके, एटलीस्ट 5 पर्सन आर रिक्वायर्ड। नंबर 2 क्या होगा, देखिए इट क्रिएट्स स्पेसिफिक ऑफेंस, ओके, स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स विकरेस लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द unlawful, it also creates vicarious liability of the unlawful assembly, ओके, अनलॉफुल असेंबली। नंबर देखिए नंबर 3 अगर देखिए इसमें हम बोल सकते हैं प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, ओके, इसमें क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट में एक ग्रुप होता है जिसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट, ओके। नंबर 3 में क्या होगा बोले थे, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, जैसे कोई भी एक ग्रुप है ना, उन लोग का कॉमन ऑब्जेक्ट है, जैसे सेक्शन 189 में अनलॉफुल असेंबली का टोटल 5 कॉमन ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। सो फॉर दैट प्रायर common object there are 5 common objects are given है, and for that prior meeting of mind is important, prior meeting of mind is important, okay, prior meeting of mind is important। and number 4 क्या बोल सकते बोले तो active participation, okay, active participation is not necessary, that means active participation not is not necessary, दैट मीन्स अगर ग्रुप में कोई भी जाके कोई भी एक कार्य करता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, देन हर कोई ग्रुप का हर एक मेंबर, ओके, ग्रुप का हर एक मेंबर इक्वली लाइबल होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, अगर कोई भी कार्य अगर सेवरल पर्सन है, कुछ लोग मिलकर करता है, देन जो जो भी एक क्राइम होगा तो उस पर्सन को सिर्फ उसी पर्सन को इक्वली सब पर्सन को इक्वली तो लाइबल तो करा ही जाएगा, लेकिन उसको हम कंसिडर करेंगे कि सब पर्सन each one of them is equally liable for that, okay, but on the other hand if we say in case of common ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्रुप में एक अगर ये ग्रुप 5 और मोर पर्सन का हो सकता है, लेकिन उस ग्रुप का हर अगर कोई भी एक पर्सन, ठीक है, फॉर द प्रोसिक्यूशन और फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी एक ने कुछ भी किया है, देन ईच एंड एवरी पर्सन विल बी equally liable, and for that prior meeting of mind is not important, okay, and for that in common object active participation, okay, active participation is also not necessary because अगर 5 ग्रुप में 5 लोग हैं, ठीक है, और 5 से ज़्यादा है, किसी एक ने कोई भी एक कार्य किया फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड ग्रुप के सभी को पता है, ठीक है, कि ऐसे व्यक्ति ये करने जा रहा है, ठीक है, वन ऑफ देम, देन इन दैट केस ईच एंड पर्सन, क्योंकि उन बाकी सबको नॉलेज है कि ये करने जा रहा है फॉर द इनिशिएशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, ओके, देन इन दिस केस
each and every person will be equally liable. Okay, so now moving to next, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफेंस। ओके, पनिशमेंट देखिए, कॉमन इंटेंशन का पनिशमेंट क्या होगा। देखिए कॉमन इंटेंशन का पनिशमेंट क्या होगा, ठीक है, कॉमन इंटेंशन का पनिशमेंट क्या होगा। देखिए द सेम एज फॉर द ऑफेंस अकॉर्डिंग टू ऑफेंस कॉग्निजेबल। अगर जो भी ऑफेंस होगा कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट जिस ऑफेंस के लिए जो जिस ऑफेंस को करने के लिए कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट किया गया है, सो अगर वही ऑफेंस अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो ये भी पनिश कॉग्निजेबल है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। ओके, पनिशमेंट ऐसा होगा। और अकॉर्डिंग टू एन ऑफेंस अगर बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और ट्राइबल भी होगा बाय कोर्ट बाय विच द ऑफेंस इज ट्राइबल नॉन और नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा ऑफेंस के बारे में कि ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल है तो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल है तो नॉन कॉग्निजेबल। अगर ये ऑफेंस अगर बेलेबल है तो देन ऑल्सो इट इज बेलेबल, देन इफ इट इज नॉन बेलेबल देन पनिशमेंट भी अकॉर्डिंगली नॉन बेलेबल जैसे होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। देखिए अभी स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। देखिए स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, देखिए इसके कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बोला है। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट। ओके, कॉमन ऑब्जेक्ट बारे में क्या बोला है। देखिए when the charge is under section 49, ओके 49 को छोड़िए, 49 को आईपीसी के बारे में बोला है। देखिए when the charge is under section 49, the presence of the accused as a part of unlawful assembly is sufficient for conviction even if no overt act is imputed to him। ओके, सपोज एक ग्रुप में ग्रुप ऑफ 5 पीपल, अगर कोई भी एक पर्सन, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन उस ग्रुप में प्रेजेंस रहता है, ठीक है, अगर प्रेजेंस रहता है देन दिस प्रेजेंस इज एनफ फॉर हिज कन्विक्शन इवन इफ नो ओवर्ट एक्ट। अगर कोई भी क्लियरली ओपनली उसने कोई भी कार्य नहीं किया फॉर द इनिशिएशन और फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, still he will be guilty। Okay, he will be guilty, still will be guilty as per section 190 ऑफ बीएनएस। ओके, अगर कुछ उसने कोई भी ओवर्ट एक्ट किया भी नहीं, ओवर्ट एक्ट मीन्स कि ओपनली डन, जो हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, ओवर्ट एक्ट अगर ने भी किया फिर भी ही विल बी लाइबल। नेक्स्ट देखिए conviction by taking recourse to section 149 cannot be made out unless 5 specified objects enumerated in section 140 are not proved। हाँ, तो देखिए अब जैसे कन्विक्शन अंडर सेक्शन, कोई भी कन्विक्शन अंडर सेक्शन 190 बीएनएस में नहीं हो सकता है until and unless there is a common object and common object जो 5 मेंशन किया गया है अंडर सेक्शन 189 ऑफ बीएनएस में, अगर ये 5 कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है देन that person or that group of people cannot be held guilty under section this 190। ओके, नेक्स्ट देखिए इवन इफ नो overt act is imputed to a particular person when the charge is under section 149, the presence of the accused as a part of the unlawful assembly is sufficient। that means unlawful assembly तो होना पड़ेगा एंड उसका presence ही enough है। ठीक है, unlawful assembly कैसे होता है, 5 और more people मिलके एक अनअसेंबली अनलॉफुल असेंबली फॉर्म होता है एंड एनी वन ऑफ, अगर किसी का भी प्रेजेंस दिखाई दिया देन ऑल्सो ही विल बी इक्वली गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। दैट मीन्स विकरस लाइबिलिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए जॉइंट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली क्या बोला है। देखिए it is well settled that once a membership of the unlawful assembly is established, it is not incumbent on the prosecution to establish whether any specific overt act has assigned to any accused. Mere membership of the unlawful assembly is sufficient। Okay, that means केवल मेंबरशिप ही काफी है। ठीक है, मेंबरशिप ही काफी है। पहले बोला गया था क्या,
पहले बोला गया था प्रेजेंस, अभी मेंबरशिप, सपोज कोई भी ओवरटेक नहीं किया गया है, लेकिन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऐसे इसे सामने आया कि मेंबरशिप, उस पर्सन का मेंबरशिप है उसी ग्रुप में, देन ऑल्सो दैट पर्सन will be liable. Okay, that means mere membership of the unlawful assembly is sufficient. Mere membership, mere mere membership, mere membership, mere membership, membership is sufficient. Membership is sufficient. Okay, mere membership is sufficient. Next देखिए, next बोला every member of unlawful assembly is vicariously liable for the act done by other, either in the prosecution of the common object of the unlawful assembly or such which the member of the unlawful assembly knew were likely to be committed. That means जितना पर्सन होगा, ओके, जितना मेंबर होगा एक अनलॉफुल असेंबली का, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन विल बी विकरेसली लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर्स है इन द प्रोसिक्यूशन, आइदर क्या बोला, आइदर इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली और सच विच द मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली न्यू, कि उनको पता था कि ये वेर लाइकली टू बी कमिटेड, कोई भी एक कार्य किया जाएगा ऐसा बाय एनी मेंबर फॉर द prosecution or for the achievement of that common object. Okay, and that case that was held in the case of state of Maharashtra versus Joseph Mingle Kohli 1997. ये भी है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जोसेफ मिंगल कोहली 1997. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट. अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब.